subscribe my channel. कैसे काम चलेगा मेरे दोस्त? मेरे दोस्त क्या भूल गया? चुप। मेरे दोस्त की सुविधा स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए कराम, नकीब मुहतरम और जमीए अइम्मा-ए कराम, सामईन ज़ी एहतशाम, पर्दानशीं ख़ातीन उम्मत, साहिबान अक़्ल व दानिश, अरबाब इल्म व बसीरत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मुहतरम, आप हज़रात जिनकी महफिल में बैठे हैं, उनका आदेश ये है कि जो भी मोहब्बत से मेरा नाम लेगा वो जलील नहीं होगा, क्या बात है, वाह वाह। और जो भी 11वीं शरीफ मनाएगा वो कभी भूखा नहीं मरेगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप यहाँ पर आए, काबिल मुबारकबाद हैं वो अशख़ास व अफ़राद जिन्होंने गौसे आज़म की महब्बत में इस महफिल को सजाई। अब हमें सिर्फ सुनना है और थोड़ी देर गुफ्तगू को सुन करके उस पे अमल की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल। हज़रात मोहतरम, मैं आपके दयारे मोहब्बत में बहुत ही कम टाइम लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, और अगर आप हजरात सुनते हैं जिंदा दिली के साथ तो 2-4 मिनट और बढ़ा दिया जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर बिल्कुल ही मुर्दनी के साथ सुनते हैं तो फिर जब तक जिंदा करके ना जाए तब तक सुनाया ही जाएगा। ये जमाई के साथ आप हजरात समाप्त करें। मैं 20 मिनट एकदम अच्छे से तकरीर करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, और इसी में चाहूँगा कि आप हजरात एक्टिव हो जाएं। आप अगर एक्टिव होंगे तो जो आपके अइम्मा हजरात हैं, जो आपके लीडर हैं, जो आपके स्पीकर्स हैं, वो भी एक्टिव होंगे और फिर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव एनर्जी जिसे मिलेगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेगा, और सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि फांसी के फंदे पर लटक करके भी वो कहता हुआ नजर आएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम और आप
تو صرف سننے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں کوئی مار نہیں رہا ہے. آپ یاد کریں عباس قادری کو پل پر گھیر کر کے زخمی کر دیا گیا ہے, ہاتھ پاؤں توڑے جا چکے ہیں, اس کے باوجود بھی جان جانے کو ہے. عباس قادری یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صدائے درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس, جشن غوث الورا کانفرنس, علماء اہل سنت, مولانا ظفیر ثقافی صاحب قبلہ. پھانسی کے پھندے پر بھی نبی کا نام, نبی کا ذکر, ادھمرے حالت میں بھی نبی کا نام. اور جو سچا عاشق رسول ہے وہ تو یہ کہتے ہیں صرف زندگی میں ہی نہیں نبی کا ذکر کرنا ہے, موت تک ہی نبی کا ذکر نہیں کرنا ہے, قبر تک نبی کا ذکر نہیں کرنا ہے, بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دعا, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. حضرات محترم تھوڑی دیر سماعت کریں. مجھے لگا بریانی ختم ہے, کھرچن باقی ہے اور اس میں تیل کافی ہے. ادب کے ساتھ صرف 20 منٹ سنیں, پریکٹیکل میتھڈ پہ بات کریں انشاءاللہ. I would like to express my thought. Who is Ghaus Azam and what is personality of Ghaus Azam? I start conversation by this word. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika lamina ash-shahidin wash-shakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hazrat محترم, ہم نبی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے کیونکہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اور طریقہ کون سا بتا کے گئے؟ بریلی کے تاجدار نے تو یوں کہہ دیا کہ نبی پر درود پڑھنا ہے. جن کی اعلیٰ شان ہے, جن کی اعلیٰ شان ہے, جن کی عظمت کا کوئی مقابلہ نہیں, اس نبی پر جب درود پڑھنا ہو تو ایک درود نہیں, 10 درود نہیں, 100 درود نہیں, لاکھوں درود بلکہ کروڑوں درود پڑھا کرو اور بخاری شریف کی حدیث پر عمل کیا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرہ, جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 نعمتیں ظاہر فرماتا ہے, 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اعلیٰ حضرت نے جو طریقہ بتایا کہ ہمیں دکھا کر کے نہیں, ہمیں شکل نہیں دکھانی ہے, ہمیں دکھاوا نہیں کرنا ہے, ہمیں شو آف نہیں کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی doesn't see your face. اللہ تبارک و تعالی doesn't see your ways. اللہ تبارک و تعالی آپ کی کمائی کو نہیں دیکھتا, اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالی اگر دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو دیکھتا ہے, اور دل سے یہ صدا نکلے, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, پیدا کے شکروہا تم پہ کروڑوں درود, شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافعی جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. اپنے خطا بار کو اپنے ہی دامن میں لو, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود, کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی تمہاری بلا, تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیر اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. محترم, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس, علماء اہل سنت. سبحان اللہ, سبحان. حضرات محترم, ہمیں اور آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. آئیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھے, اس نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کی صدیقین میں صداقت لاجواب ہے, جن کی
لاجواب ہے، جن کی سخیوں میں سخاوت لاجواب ہے، جن کی بہادروں میں شجاعت لاجواب ہے، جن کی امامت لاجواب ہے، جن کی سخاوت لاجواب ہے، جن کی شہادت لاجواب ہے، جن کی شفاعت لاجواب ہے، جن کی طہارت لاجواب ہے، بلکہ یوں کہہ لو لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر اس طریقے سے بات کر لو کہ نبی کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے. ارے یہ بارگاہ کون سی بارگاہ ہے؟ یہ نارمل بارگاہ نہیں ہے، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے لیے کہا گیا ادب کا حیث زیر آسماں عذاب شناس اتر نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزیدی کا. اس جگہ آنے پر جنید بغدادی جیسے لوگ، بابا بایزید بستامی جیسے لوگ اپنی سانس کو روک لیتے ہو. ان کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے جن کے بارے میں شیخ سعدی نے کہا ہو. شیخ سعدی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جن کے بارے میں حضرت حسان نے کہا ہو وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جس کے بارے میں حضور محدث اعظم ہند نے کہا ہو، اور جن کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کہا ہو. کون ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی؟ جنہوں نے نبی کی تعریف کی ہے اور تمام لوگوں نے تعریف کی ہے. اس نبی پر درود پڑھنا ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، کوئی انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. پڑھے درود اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اب صرف 2 شعر پڑھ کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ حضرات بغور سماعت کریں. آپ نرالے شان نرالی، آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی، غوث اعظم جیلانی. بھر دو ہماری، بھر دو ہماری جھولی خالی، غوث دو ہماری. آخری شعر سماعت فرمائیں. مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. مانے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی. آپ کی ماں بھی اللہ والی، غوث اعظم جیلانی. حضرات محترم، سبحان اللہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، حضرات محترم
اس کے متعلق کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. ہر چیز کو رب تبارک و تعالی جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الا ان اولیاء. اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار, ہوشیار. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جب کہا ہے تب اللہ کا یوز کیا ہے, اور جب لوگوں کے بارے میں یوز کیا ہے تو صرف اولیاء اللہ کے لیے اللہ یوز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار, اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا غم ہے اور نہ کسی چیز کا ڈر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگ انکار کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے ہی کہ لوگ انکار کریں گے. لوگوں نے ہر چیز کا انکار کیا ہے. لوگوں نے نماز کا انکار کیا, روزے کا انکار کیا, حج اور زکات کا انکار کیا ہے لوگوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اس لیے پہلے ہی کہہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اولیاء اللہ پر کوئی انکار نہ کرے, اولیاء اللہ کا انکار نہ کرے, اولیاء اللہ پر کوئی بہتان نہ باندھے, اولیاء اللہ کو سب مانے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اسی لیے طریقہ بتا دیا. خبردار, ہوشیار, اولیاء اللہ سے جڑتے رہو, اولیاء اللہ کو مانتے رہو. اولیاء اللہ کون ہے ہمیں سمجھنا ہوگا. اولیاء اللہ کی ذات کون سی ذات ہے, اولیاء اللہ کا مرتبہ کس طریقے کا مرتبہ ہے, اولیاء اللہ ہے کیا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر اولیاء اللہ کو دیکھیں. اولیاء اللہ میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے. جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے ہم کس طرف دیکھتے ہیں, ہم پولیس کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپنے خود کی طرف دیکھتے ہیں, اب اپنی کیپیسٹی کی طرف دیکھتے ہیں, ہم اپنی چھمتا کو دیکھتے ہیں. اور اولیاء اللہ کس طرف دیکھتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے. جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم خود کی طرف دیکھتے ہیں, اولیاء اللہ خدا کی طرف دیکھتے ہیں, اولیاء اللہ نبی کی طرف دیکھتے ہیں, اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں. اور فرق سمجھے کہ ہم لوگ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, وہ کام مکمل نہیں ہوتا, کبھی ادھورا بھی رہ جاتا ہے, کبھی اللہ کے فضل سے پورا ہو جاتا ہے. ہم کوئی کام کرنے جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہمارا بیٹا گھر میں سو رہا ہے, ابھی فجر کا وقت ہوگا, ہم اپنے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, ہم سے ہمارا زندہ بیٹا نہیں اٹھتا. اولیاء اللہ مردے کو اٹھا دیتے ہیں, اولیاء اللہ مردے کو اٹھانے کی جسارت و ہمت رکھتے ہیں. یہ کس طریقے سے ہے, کیونکہ ہمیں جاننا ہوگا اولیاء اللہ کون ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے. ان کو یہ مرتبہ کیوں ملا ہے, کیونکہ وہ خدا سے جڑ گئے, خدا ان سے جڑ گیا. وہ اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ انہیں چاہتا ہے. وہ رسول کو چاہتے ہیں, رسول انہیں چاہتا ہے. اور اس طریقے سے جب بات بنتی ہے تو بات یہاں تک پہنچتی ہے, عشق رسول پاک میں جو بھی فنا ہو جائے گا وہ خدا کا ہو گیا, اس کا خدا ہو جائے گا. میرے غوث اعظم ہے, ان کی کرامت دیکھیے, یہ اشارہ کر دے تو مردہ کھڑا ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس علماء اہل سنت علامہ مولانا شفیع صاحب قبلہ ثقافی. کون ہے غوث اعظم, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. غوث اعظم کا رتبہ کیا ہے, ان کی شان کیا ہے, انہوں نے آخر کیا کیا ہے اور کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے. کون ہے غوث اعظم. اب ہم اپنی ٹاپک کی طرف چلیں, آئیے اپنی بات کریں, اپنے غوث اعظم کی بات کریں کہ غوث اعظم کون ہے, ان کی شان کیا ہے. جو ماں کے شکم سے یرحمکم اللہ کہے وہ ہے غوث اعظم. جو ماں کے شکم میں رہ کر کے سلام کا جواب دے دے وہ ہے غوث اعظم. جو ماں کو کوئی سلام کرے اور شکم میں سن لے وہ ہوتے ہیں غوث اعظم. اور جن کے لیے فرشتہ کہتا ہوا نظر آئے راستہ دیجئے, ہٹیے ہٹیے راستہ دیجئے, جن کے لیے کہا جائے وہ ہوتے ہیں غوث اعظم. جس کے لیے فرشتے افسحو کہیں وہ ہوتے ہیں غوث اعظم. اسے غوث اعظم کہتے ہیں جس کے لیے فرشتے افسحو کہیں. جو 13 علوم کے ساتھ ایک ہی
मजमे में तकरीर करे उसे गौसे आजम कहते हैं। जो 70,000 के मजमे में एक बैक वक्त ऐसी तकरीर करे जैसी आवाज पहले को जाए वैसे ही आखिरी इंसान को आवाज जाए, बिना माइक के जो अपनी आवाज पहुंचाए। मुल्ला अली कारी लिखते हैं वो कोई और नहीं है, वो गौसे आजम है। इमाम हजर अस्कलानी लिखते हैं 70,000 के मजमे में जो खिताबत करता हो और उनकी मजलिस में बारिश ना हो, समझ जाओ वो गौसे आजम की मजलिस है। गौसे आजम की शान क्या है? जो खुद खाना ना खाए लोगों को खाना खिलाए, जो गरीबों को सहारा दे, जो यतीमों को सहारा दे, जिनके बदन पर कभी मक्खी ना बैठे, जिनके बदन पर किसी तरीके की कोई गंदी चीज ना आए, जिनके बदन से खुशबू फूटती हो, जिनका रुतबा औलिया अल्लाह मानते हो, जिनके लिए मखदूम अशरफ के बेटे अब्दुल जब्बार फरमाते हो गौसे आजम जलवाए मुस्तफा है, गौसे आजम जलवाए मुस्तफा है। जिनके लिए हसन अस्करी ने अपना जुब्बा भेजा हो, अपना मुसल्ला भेजा हो, अपना साफा भेजा हो, वो है गौसे आजम। जो मां के शिकम से पैदाइशी हाफिज बन करके उभरते हो उसे गौसे आजम कहते हैं। कौन है गौसे आजम? जो 15 साल तक लगातार एक कुरान खत्म पढ़ते हो और जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते हो उसे गौसे आजम कहते हैं। आप पूछेंगे कौन है गौसे आजम, शान क्या है गौसे आजम की, रुतबा क्या है? अरे ऐसा रुतबा, ऐसा अजीम रुतबा कि जब सारे औलिया जमा होते हैं और जमा होने के बाद तमाम औलिया गर्दन झुका लेते हैं। किस वक्त? जब मेरे गौस फरमाते हैं कदमी हादिही रक़बतिन अला कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे है। जब ये फरमाते हैं, ये शान देखकर, ये इज्जत देखकर, ये अजमत देखकर, ये रिफत देखकर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ए गौस है पाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। कौन है गौसे आजम? जिन्होंने मुर्गो मुसल्लम नहीं खाया बल्कि इस्लाम को फैलाने के लिए हरे हरे पत्ते चबाए हैं, जिन्होंने खूब आंसू बहाया है, जिन्होंने रो करके अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया इस उम्मत के लिए, दजला के किनारे जिन्होंने पत्ते चबाए हैं, एक पांव पे खड़े होकर के जिन्होंने कुरान मजीद पढ़ा है। हम नहीं समझ सकते उनका मर्तबा इसलिए कि हम व्हाट्सएप चलाने वाले लोग हैं, हम इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग हैं, हम फेसबुक पर आइडिया बनाने वाले लोग हैं। हम कैसे समझेंगे? हमें तो समझना चाहिए। गौसे आजम का जब मर्तबा पूछा जाता है लोगों से तो लोग कहते हुए नजर आते हैं। इसी गाजीपुर की सरजमीन से जब पूछा गया था ए आसी गाजीपुरी जरा हमें ये तो बताइए गौसे आजम के बारे में आप क्या कहते हो? आसी गाजीपुरी अर्ज करते हैं पूछते क्या हो? शहीद जिला के फज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। जिसके बारे में शेख सादी ने कहा हो खुदाया बहक बनी फातिमा कि बरकौले ईमान तनम खातमा गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आहले रसूल। जिसके बारे में हुजूर मुफ्ती आदम हिंद ने कहा हो खिला मेरे दिल की कलियों से आदम मिटा कल्ब की बेकलियों से आदम। जिसके बारे में अल्लामा हसन ने कहा हो असीरों के मुश्किल कुशाओं से आदम, फकीरों के हाजत रवाओं से आदम। जिनके बारे में हम और आप सिर्फ बात कर सकते हैं लेकिन मौलाए रूम ने तो इस तरीके से कहा गौसे आदम दरमियाने औलिया जो मोहम्मद दरमियाने अंबिया। ये मौलाए रूम ने कहा है। हमें समझने की जरूरत है कि इनका मर्तबा क्या है, इनका स्टेटस क्या है और इनकी वैल्यू क्या है, इनकी इज्जत क्या है, हमें समझने की जरूरत है। इनकी शान देखकर, इनकी आजमत देखकर जब आला हजरत से पूछा गया, उन्हीं के मजार के पास एक और मजार है जिन्हें जमील कादरी कहते हैं। जमील कादरी से पूछा गया था गौसे आदम के बारे में आप क्या कहते हैं? गौसे आदम के बारे में जब जरा आप
आप बताइए कौन है जमील कादरी जिनसे पूछा जा रहा है? हम हर रोज सुनते हैं, फजर में हर मस्जिद से ये आवाज आती है, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। बुद्ध शिकन आया ये कहकर, मुंह के बल बुद्ध गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, और फरमाया सर कलम कर दो मेरा या काट दो मेरी ज़बान, मेरी रग रग में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। रोशनी में आमीना में जिनकी देखा मुल्के शाम, वाह वाह क्या चांद निकला अस्सलातु वस्सलाम। सर झुकाकर बादब इश्क़ रसूलुल्लाह में कह रहा है हर एक सितारा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। और पूछा गया अगर आप मर गए, आपका इंतकाल हो गया, तब क्या कहेंगे? कहा मैं वो सुन्नी हूँ जमीन, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत गौसे आजम, गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वही जमील कादरी है। इनसे पूछा गया जरा बताइए तो सही, बताइए तो सही गौसे आजम के बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहा जमील कादरी 100 जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया तुझ जैसे को जिसने बंदा गौसे आजम का, बनाया तुझ जैसे को जिसने बंदा गौसे आजम का। ये शान है जब लोग जुड़ते हैं औलिया अल्लाह से तो उनका रुतबा पता लगता है। बरेली के ताजदार ने यूं ही नहीं लिखा, जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आजम इमाम का बन्नों का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। अगर अपने वक्त का सबसे बड़ा प्रोफेसर ये कहता हुआ नजर आता हो तो हमें समझने की जरूरत है आगे काम क्या करना है। कि औलिया अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन अगर कोई ना माने, अगर कोई ना माने तो उसके लिए क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह क़ाल मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह तबारक व तआला said, I will declare war against him who against औलिया अल्लाह, who against गौसे आदम, who against ख्वाजा गरीब नवाज। ये बात किसने कही है? रसूलुल्लाह ने। फरमान किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। और सुन्नियों का बच्चा बच्चा जानता है सरकारे दो आलम का। फरमान न बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदलेगा। तो हमें गौसे आजम से जुड़ने की जरूरत है। किस तरीके से जुड़ सकते हैं? आप देखें, एक कुत्ता था, कुत्ता, और गौसे आजम के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता। अब जब गौसे आजम से जुड़ा है, उनके रुतबे को समझा है, उनके टुकड़ों पर जब पला है तो वो डर नहीं रहा, वो दब नहीं रहा, वो खौफ में नहीं आता। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। समझने वाली बात यह है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसके बलबूते आगे बढ़ रहे हैं, वो किसी और के मुरीद नहीं। आप समझे, हम एक जंग लड़ते हैं, अगर हार जाए तो घुटने टेक देते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जात ऐसी जात है, मुसलसल 16 जंगें लड़ी हैं और बैतुल मुक़द्दस को आजाद करवाया। समझने वाली बात है। हम एक जंग लड़ते हैं, चुप हो जाते हैं, एक इलेक्शन लड़ते हैं, चुप हो जाते हैं, एक पार्टी में बैठते हैं और वहां से सरेंडर कर जाते हैं। एक दो जंग नहीं, 10-12 जंग नहीं, लगातार 16 जंगें लड़ने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। किसके फजल से लड़ रहे हैं? वो कोई और नहीं, हुजूर गौसे आजम की जात है। और
اور غوث आजम के जिसने माना है उन्होंने हमें बताया कि हमें भागना नहीं है, हमें जिंदगी में दरी नहीं बिछाना है, हमें किसी के आगे चापलूसी नहीं करनी है, हमें हमेशा दरी नहीं बिछानी है, हमें आगे बढ़ना है, हमें सियासत में घुसना है, हमें क़यादत में घुसना है। और बताया है कि हमें समाजवादी मत नहीं बनना है, हमें कांग्रेसी नहीं बनना है। उन्होंने बताया है कि मैं भी कहता हूँ तुम भी कहते रहना, हमें समाजवादी बनने की दुआ नहीं दी, बल्कि कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा, मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। इस तरीके से इरशाद फरमाया है हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। जब कुत्ते को निस्बत हुई है तो कुत्ता नहीं डरा, उसने शेर को फाड़ा। ख्वाजा गरीब नवाज से निस्बत हुई गौसे आदम से, तो आज सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, यूपी बिहार ही नहीं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान ये कहते हुए फख्र महसूस करता है ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और बगदाद से मिली है तुझे वो शाने रफी, दंग है सब देख के आज भी रुतबा तेरा। इस तरीके से अब रेफरेंस की बात, मरफूज़ात आला हज़रत में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 270 में आला हज़रत लिखते हैं कि एक कब्र को देखा गया, उस पर 2 फूल पड़े थे, फूल को देखा और जब वो कब्र खुल गई तो उस कब्र को मुंतकिल करने के लिए उस जिस्म को उठाया गया और दूसरी जगह दफनाने की कोशिश की गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि जहां 2 फूल नजर आ रहे थे वहीं 2 सांप नजर आ रहे हैं। पूछा गया आपको सांप नजर आए, अब क्या करना है? मरफूज़ात में आला हज़रत ने लिखा, कहा जिस जगह पहले कब्र थी वहां एक वली की कब्र थी, उसकी बरकतें मिलती थी, उसकी रहमतें मिलती थी, ये अज़ाब इलाही से बचा हुआ था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसे वो मर्तबा दे दिया था वली के बगल में कब्र होने की वजह से। मलफूज़ात में आला हज़रत लिखते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? अब हम मौत के बारे में सोचते नहीं, मौत के बारे में जब हम समझेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबक जब पढ़ाएंगे तो हमें याद हो जाएगा कि हमें इस दुनिया को जान नहीं कहना है, हमने अपने घर को जान नहीं कहना है, हमें अपनी तकरीर को अपनी जान नहीं कहना है, रुपया और पैसे को अपनी जान नहीं कहना है। जब आप अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे तो यही आपका बेटा होगा जो किसी लड़की को जान कहता है, अपने मकान को जान कहता है, माल और दौलत को जान कहता है, वो कहता हुआ नजर आएगा जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। वो कब सीखेगा? जब आप अपने इमाम साहब के पास भेजेंगे, जब आप अपने मौलाना साहब के पास भेजेंगे तो आपके मौलाना साहब बताएंगे, नक़ीब अहले सुन्नत के पास जब आप भेजेंगे तो आपका बेटा पढ़ता हुआ और सीखता हुआ नजर आएगा। अगर आपने आज अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, सिर्फ गौसे आदम का नाम लिया, तो आपके ऊपर परेशानी आनी है, आपको तकलीफें होनी है। लेकिन नाम अगर लेते हुए गौसे आदम का काम क्या है उस पर भी अमल करने लग जाए, ये कब सीखेंगे? ये आप डॉक्टरेट की पढ़ाई में नहीं होगा, ये आपको MBBS करने में हासिल नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाए, आप अपने बच्चे को प्रोफेसर ना बनाए। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपने बच्चे को प्रोफेसर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, लेकिन इतना दीन तो पढ़ा दे कि जब तक आप जिंदा रहे आपका बेटा आपकी इज्जत करता हुआ नजर आए, आपके इंतकाल के बाद आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता हुआ नजर आए। ये कब होगा? जब वो कुरान पढ़ेगा, कुरान सीखने के लिए जब मौलाना साहब के पास जाएगा तो मौलाना साहब बताएंगे हमें मौत कभी भी आ सकती है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें इसी मोहल्ले में मौत आए या दूसरी जगह हम मुंतकिल करें तब मौत आए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, हम कौन किस जमीन पर मरेगा तुम में से ये कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला आगे
इरशाद फरमाता है ऐनमा तकून युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर मजबूत किले में भी छुप जाओ तो वहां पर भी मौत आएगी। और इरशाद फरमाया रब तबारक व तआला ने नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत, हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर कर दिया, अब हमें तैयारी करने की जरूरत है, वरना कब्र में बाप नहीं जाएगा, बेटा नहीं जाएगा, भाई नहीं जाएगा, बहन नहीं जाएगी और रिश्तेदार नहीं जाएंगे। ये दुनिया है, यही दुनिया में सब रह जाना है। अगर कब्र में कोई काम आएगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और हम और आप तो सिर्फ बात करते हैं, आला हज़रत ने तो ये कहा अगर कब्र की हौलनाकी देख लूं और महशर मैदान महशर की तकालीफ को देखूं तो मेरा अकेले जाने का मन नहीं है। मेरा तो ये इरादा है कि हश्र का मैदान हो, मैं अकेले ना जाऊं। और अर्ज करते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात मोहतरम, कोशिश करनी चाहिए कि हमें जिंदगी में सीखने को मिले, वरना कोई नहीं बचाने वाला। कब्र में जो आदाब होगा उससे हमें कोई नहीं बचाने वाला। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बेटा दीन सीख जाए। अल्लाह तबारक व तआला का जब दीन आपका बेटा सीख लेगा तो आपका अदब करेगा। आखिरी के 5 मिनट सिर्फ इंशाअल्लाह 4 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आप हजरात गौर से सुने कि हमें मरना है। अब कौन किस जमीन पे मरेगा ये कोई नहीं जानता, किस तरीके से मरेगा ये कोई नहीं जानता। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? आप 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया कमाए, आपका इंतकाल अगर आज हो जाए, यही आपका बेटा है, इसे नमाज जनाजा नहीं मालूम, इसे सूरह फातिहा नहीं मालूम, ये बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा। आप सोचे कि अज़ाब किसको होगा? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल, every one of you is responsible and Allah तबारक व तआला will be asked about his responsibility। अल्लाह ताला पूछेगा तेरा बेटा ऑर्केस्ट्रा में कैसे गया, तेरा बेटा बियर बार में कैसे गया, तेरा बेटा डांस बार में कैसे गया, तेरा बेटा थिएटर में कैसे गया। बेटा तेरा है, तुमने कमाया है, तुम खूब कमाओ, लेकिन अपने बच्चे को दीन भी तो सिखाओ। आप चाहते हैं आपका बेटा आपकी इज्जत करे, आपकी आंखों में आंखें डाल करके बात ना करे, आपके सामने गुलामों की तरह बात करे, आपका अदब करते हुए नजर आए, आपकी जात को समझता हुआ नजर आए, आपकी इज्जत को समझे, आपके मकान को समझे, आपके मर्तबे को समझे, तो उसे कुरान मजीद पढ़ाना होगा, हदीस रसूल पढ़ाना होगा, गौसे आजम का पूरी गौसे आजम की जीवनी पढ़ानी होगी। जब वो पढ़ेगा कि गौसे आजम अपने वालिद की बात मानते हैं, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पूरी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, तो हम भी गौसे आदम की नकल करते हुए अपने बेटे को पढ़ाएंगे। और जब हम पढ़ाएंगे तो हमारा बेटा बहकेगा नहीं, अगर गुनाह करता होगा तो वो छोड़ता हुआ नजर आएगा। आप अपने बच्चे को दीन सिखाएं। आपका बेटा अगर गुनाह कर रहा है तो उसको बताएं गुनाह नहीं करना है, उससे बचना है। अगर आपका बेटा शराब पी रहा है तो उसे आयत बताएं यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर। वो अगर आपका बेटा झूठ बोल रहा है तो उसे बताएं कि गौसे आजम ने क्या इरशाद फरमाया था, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आपका बेटा झूठ नहीं बोलेगा। अगर आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं कर रहा है तो आप गौसे आजम की जीवनी पढ़ाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश बताएं कि बेटा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश है, इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। अगर आज आपके बेटे ने इल्म दीन हासिल कर लिया तो आपको अज़ाब कब्र से बचाने के लिए कोई तैयार है, वरना अगर आपका बेटा यहाँ पर गुनाह करता है तो आपको अज़ाब कब्र से छुटकारा नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम मानते हैं औलिया अल्लाह को तो सिर्फ नाम ना ले कि गौसे आजम के दीवाने हैं। गौसे आजम ने क्या किया है, टीम बनाई है और ऐसे ऐसे मुजाहिदीन को तैयार किया है जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी भी है, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज भी है। गौसे
आदम को हम हल्के में ले रहे हैं। अरे कौन है गौसे आदम जो सैयद भी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, फाजिल भी है, मुफ्ती भी है, मुफक्किर भी है, मुदब्बिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुअर्रिख भी है, मुसन्निफ भी है, गौसे आजम मुनाजिर भी है। और ये सारे मरातिबे को अपने शागिर्दों में बांटा है, तमाम लोगों को तैयार किया है। गौसे आजम ने टीम बना करके मोहल्ले से बुराई का खात्मा कर दिया है, मोहल्ले से बेहयाई का खात्मा कर दिया है, पूरे बगदाद से गुनाहों का खात्मा किया है, पूरे जीलान से गौसे आजम ने गुनाहों को मिटा दिया है। अब कोई लड़की की तरफ आंख उठा करके देखने वाला नहीं है। गौसे आजम ने ऐसी आयतों की तफसीर की है, गौसे आजम ने जो बता दिया है उस पर अमल करने की जरूरत है। अब हमें आखिरी आयत कुरान मजीद की अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान में चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 46 इरशाद फरमाता है, वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। हमने आज तक झूठ बोला ठीक है, हमने गुनाह किया ठीक है, हमने जो भी काम किया इस पे अफसोस है, शर्मिंदगी है, लेकिन आगे हमें करना क्या है? हमने जो भी गुनाह किए हैं आज अल्लाह की रजा के लिए छोड़ो, आज अल्लाह तबारक व तआला के रहम पर, अल्लाह ताला के करम पर उम्मीद करते हुए छोड़ दो। अल्लाह ताला उसकी जज़ा क्या देगा ये हमें समझने की जरूरत है। गुनाहों के दलदल में फंसे रहे, हमें इन्हीं दोस्तों ने बहलाया, इन्हीं दोस्तों ने भटकाया और गुनाहों में ले डूबे। हमें दोस्ती भी अल्लाह वालों से करनी है। और कुरान मजीद की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, कि फला आदमी को दोस्त बनाया है। कब्र में अफसोस होगा, क़यामत में अफसोस होगा। अगर तुझे दोस्ती बनाना है तो उलमाए रब्बानियीन को दोस्त बना, इमाम मसाजिद को दोस्त बना, पाक और साफ इंसान को दोस्त बना, जो बुजुर्ग हो उन्हें दोस्त बना, जो रुकू करते हो उन्हें दोस्त बना, जो सजदा करते हो उन्हें दोस्त बना। जो भी तुमने गुनाह किए हैं आज छोड़ने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद क्या है, वलीमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान। जो अल्लाह तबारक व तआला के डर से एक गुनाह छोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 जन्नतें अता करता है। जो भी आपने गुनाह किया है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने किस तरीके का गुनाह किया है, कौन सा आपने गुनाह किया है, उससे बचने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। हमें आज सुधरना होगा, आज मस्जिद में जाना होगा, आज रब को मनाना होगा, आज उलमा का अदब करना होगा। आज अगर गौसे आदम के नाम की महफिल सजाई है तो गौसे आदम का जिक्र भी करना है, गौसे आदम का काम भी करना है, गौसे आदम के मिशन से भी जुड़ना है, यूनिटी बनानी है, टीम बनाना है, नए काम करना है और मदरसे की तरफ आना है, मस्जिद की तरफ आना है, नमाज की तरफ आना है, बेहयाई से रुकना है। हमें आज सुधरना होगा, आज संभलना होगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मान उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरात मोहतरम, हमने खूब गौसे आजम का नाम लिया, जिक्र किया। अब गौसे आजम ने क्या काम किया वो देख लेते हैं, 1 मिनट में गुफ्तगू खत्म। गौसे आजम ने माँ बाप का अदब किया है, दोस्तों का अदब किया है, पढ़ने में अपनी 30 साल की जिंदगी खर्च की है। और जो बच्चा नहीं पढ़ सकता था उसको पढ़ाया है, उसको राशन दिया है। और जो गरीब फकीर आदमी परेशान है, उस गरीब और फकीर को अपना 70,000 का कपड़ा उसको दे दिया है कि इससे काम चलाओ। गौसे आजम ने अल्लाह की रजा हासिल करने का हुक्म दिया और मक्कार और झूठे लोगों से बचने का हुक्म दिया। अगर हम आज इस पर अमल करते हैं, क्या क्या काम करना है? माँ बाप का अदब करना है जैसे गौसे आजम ने किया, और इसी तरीके से छोटों पर शफकत करनी है, नमाज नहीं छोड़नी। गौसे आजम ने एक दिन में 1 खत्म कुरान और इस तरीके से 15 साल तक लगातार रोज 1 खत्म कुरान पढ़ा है और 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। मतलब रात भर
इबादत में। हम रात भर मोबाइल में, रात भर टीवी में, रात भर यूट्यूब और दूसरी चीजों में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इंस्टाग्राम के फॉलोवर बढ़ाने के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इबादत के लिए। अब इबादत कैसी है? आप बीवी से प्यार से बात करें, ये इबादत है। बीवी को अपने हाथ से लुकमा खिलाए, ये इबादत है। अपने बच्चे को अपने हाथ से लुकमा खिलाए, ये इबादत है। अपनी बेटी का अदब करें, ये इबादत है। मोहल्ले के अच्छे लोगों को चुन करके एक टीम बना करके इस्लाम के लिए काम करें, इस्लाम के लिए आगे बढ़े, इस्लाम की बात करें, नबी के दीन को फैलाए, गौसे आजम के मिशन पर निकल जाए। ये गौसे आजम का काम है और इस पर हमें अमल करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहम्मद यानी वो हर्फ नफुस्ती किल्के फितरत का किया जिसने मुकम्मल नुस्खे इखलाक इंसानी, न जाने हुस्न है या इश्क, इतना जानता हूँ मैं मुझे खींचे लिए जाता है कोई जज्बा पिनानी। हमारे दीन की हकानियत के दोनों शाहिद है, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहय्युद्दीन जिलानी। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने में जो भी गलतियां हुई हो मुआफ फरमाए और हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Subscribe my channel